Yes, in the last lecture, what we have covered? In the last lecture, what we have covered? Fast. Hmm? Which controls we have covered in the last lecture? Yes, students, tell me fast. Which controls we have completed in the last lecture? Ma'am, drop list. Drop down list. Okay, drop down list we have covered in the last lecture. We have already completed with the list controls. Which are the list controls? Which are the list controls, students? Which are the list Uh, controls? checkbox, Hmm? checkbox list, Huh? or Hmm? drop down, Hmm? drop down or drop down list. ड्रॉप डाउन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है. ओके, नेक्स्ट. Okay, list box control. The first is list box control. Then checkbox list, radio button list. Okay, drop down list. Okay, all are the list controls. List controls. Okay, okay. Which is a common property for all the list controls? Which is a common property? Which is a common property for all the list controls? Hmm? Yes. Which is the common property, students? मैम अभी याद नहीं आ रहा है मैम. मैम याद था वो अभी भूल गया. Okay. Yes. Other students? Other students किसी को याद है? Item property is common for all the list controls, okay, through which we can add the items in the list controls. Okay, you have to remember this type of questions I will ask in the MCQ. Okay, which property is common for all the list controls? So item property is common. Why? Because through item property we can add the items in the list controls, all the list controls. Checkbox list, checkbox list, list box, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑल हैव द कॉमन प्रॉपर्टी. बाकी सारा कॉमन प्रॉपर्टीज तो है ही, कि कलर, फॉन्ट कलर, वो तो कॉमन है, वो तो लिस्ट में ऑल इन एवरी कंट्रोल्स, दोज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज. बट फॉर द लिस्ट कंट्रोल्स, लिस्ट ओनली लिस्ट कंट्रोल्स के लिए कौन सा कॉमन प्रॉपर्टीज है? आइटम प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है, चलो. इन द last to last practical lectures I told you कि you have to perform the practical number 1. Okay, you have to perform practical number 1. All programs you have to perform. Okay, you can make the console application or you can make the web application, whatever comfortable for you, you can make. Okay, Fibonacci series, prime numbers. Okay, all for each we have already covered. Okay, find digit of numbers. You can perform these programs in console application as well as in web applications. Okay, it's your choice. Okay, आपको जिसमें भी करवाना है. What is the difference? क्या in the console application you cannot do the designing, but in the web application you can do the designing. Okay, logic same रहेगा, but in the web application you can do the designing. Okay, test for vowels, so you can ask for the user to the user for numbers, can enter any numbers, sorry, characters, and then बटन पे क्लिक करेगा तो आंसर डिस्प्ले होना चाहिए कि वो वॉवेल है कि नहीं. तो वैसे यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन विदाउट डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो. ओके, तो इट्स योर चॉइस. नाउ यू नो वेब एप्लीकेशन भी आपको पता है, कंसोल एप्लीकेशन भी पता है, ठीक है. तो ये आपको जिससे भी सुटेबल है यू कैन मेक. सेम working with objects oriented C# and ASP.NET. Okay, function overloading, inheritance, interface, ठीक है. delegates, exception handling छोड़ दो. बाकी टेम्परेचर कन्वर्जन, मनी कन्वर्जन, फाइंडिंग फैक्टोरियल वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी छोड़ दो. देन इनहेरिटेंस, function overloading. Okay, interface, all programs you have to do in the practicals. Okay, using console application or the web applications. Again I am not repeating, ठीक है. तो मैंने लास्ट टू लास्ट प्रैक्टिकल में भी बोला था, अभी भी आज भी बोल रही हूँ, you have to submit these practicals at the time of practical viva. Okay, तो आपको सबमिट करना, इट इज कंपल्सरी. जिसके पास सिस्टम है they will perform. Okay, and write, copy paste your code into word file
और जिसके पास सिस्टम नहीं है दे विल राइट इन योर नोटबुक. ओके. Then third is the working with web forms and controls. Okay, web forms and controls. Create a simple web page with various server controls to demonstrate setting and use of their properties. So you can do any programs. Okay, आप कोई भी programs कर सकते हो जो हमने list box using auto post back property अभी मत use करो. बाकी जो भी हमने programs किया उसका कोई भी controls using आप प्रोग्राम कर सकते हो. ठीक है. लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, जो भी कंट्रोल्स यू नो, जो भी डिजाइनिंग आपको करना है यू कैन डू. तो ये आपको करना है प्रैक्टिकल नंबर 3A में. क्लियर. ओके. जो भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स किया है, जो भी प्रोग्राम्स डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशन में किया है यू कैन राइट ओके इन दिस प्रैक्टिकल नंबर 3A में. ओके. जस्ट आपको वेरियस सर्वर कंट्रोल्स यूज करना, उसका प्रॉपर्टीज यूज करना है. ओके. तो एक पेज से सेकंड पेज पर रिडायरेक्ट करवा दो या तो कंट्रोल्स लगे, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, जो भी आपको आ रहा है बेसिक यू कैन डू in this practical number 3A. Clear? Yes or no? Yes or no, students? हाँ. Yes, ma'am. Okay. Okay, आपको परफॉर्म करना है. अगर सिस्टम नहीं है तो नोटबुक में लिखो, एटलीस्ट ट्राई करो, या तो यू कैन फाइंड ऑल दिस प्रोग्राम्स इन द इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. मैं भी करवा रही हूँ आपको मेरे वीडियोस, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो वीडियोस है वो देख के यू कैन राइट. ओके, वो भी आप देख के लिख सकते हो, उसमें से देख के भी. ओनली यू हैव टू चेंज लॉजिक, आपको चेंज करना है. आपको लॉजिक पता है, व्हाट इज अ लॉजिक. ठीक है. बाकी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज द सेम. ओके. तो प्रैक्टिकल 3A तक यू हैव टू कंप्लीट. ओके, आपको करना है. द नेक्स्ट क्या है, कैलेंडर करना है. दैट टुडे वी विल कंप्लीट द कैलेंडर्स. ओके, वो मैं आपको करवाने के बाद यू विल डू दिस. बट अभी के लिए आपको प्रैक्टिकल 3A तक कंप्लीट करना है. ओके. देन डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ट्री व्यू, ये सब हम लोग करेंगे. ओके. तो अभी आपको प्रैक्टिकल 3A तक करना है. ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू डू अप टू प्रैक्टिकल नंबर 3A. बाकी जो कंट्रोल जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करने दूंगी. हर एक के लिए आई हैव ऑलरेडी सीन यू वन एग्जांपल. हर एक के लिए मैंने करके दिखाया. ठीक है. जो न्यू कंसेप्ट है उसके लिए मैंने करके दिखाया. फॉर ईच लूप है, एरे, जेक्ट एरे है, जो भी न्यू कंसेप्ट है दैट आई ऑलरेडी डन फॉर यू. तो यू कैन चेक द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके, उसमें सब देख के कर सकते हो. ओके. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज विल कम्स इन यूनिट 3 में, वो आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे. तो अभी के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग छोड़ दो. ठीक है. दैट विल कम इन यूनिट 3. यूनिट 3 में वो टॉपिक है. बाकी सब कंप्लीट करो. ओके. नाउ टुडे ओके सिलेबस भी देख लो. आई होप सिलेबस सब लोग रेफर कर रहे हो, देख रहे हो. सिलेबस देखोगे समझ में आएगा कितना हमने कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है, व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन इन द क्लास. ओके. तो यूनिट 1 में ऑलरेडी कवर्ड. यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया ये सारे टॉपिक्स. ओके. असाइनमेंट में आपको लिखना है आंसर्स. देन वेब फॉर्म फंडामेंटल्स, राइटिंग कोड, पेज एनाटॉमी, इवेंट हैंडलर कैसे ऐड करना है. ठीक है. सर्वर कंट्रोल्स, व्हिच आर द सर्वर कंट्रोल्स. ओके. configuring ASP.NET application, how to run, how to add events, what is event. तो इतना portion we have already completed unit 2 का. unit then form controls also we have half complete किया है. stepping up to web controls, what is web controls. ठीक है. then web control classes, what is this web control classes मतलब क्या है, जो मैं आपको थियरी पढ़ाती हूँ कि लिस्ट कंट्रोल से वो कौन से क्लास में बिलोंग करता है. ठीक है. एवरी थियरी वो दिया हुआ है तो आपको वो याद रखना है. लिस्ट कंट्रोल वी हैव कंप्लीटेड. ओके. ये लिस्ट कंट्रोल्स जो है मतलब रेडियो बटन, टेक्स्ट सॉरी रेडियो बटन, लिस्ट, चेकबॉक्स लिस्ट, वो भी हमने कंप्लीट किया है. ओके. बाकी सब बाकी है. ठीक है. अभी तक हमने इतना ही कंप्लीट किया है. ये टेबल कंट्रोल्स, वेब कंट्रोल, इवेंट्स, ऑटो पोस्ट बैक, वैलिडेशंस. ओके. ये सब अभी बाकी है. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे. टुडे वी विल गोइंग टू लर्न दी ये रिच कंट्रोल्स. ओके. रिच कंट्रोल्स टुडे वी विल लर्न. ओके. स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे. रिच कंट्रोल्स में कैलेंडर, एड रोटेटर एंड व्यूज. ओके. इतना हमको कवर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट दी रिच कंट्रोल्स. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. ओके. तो सिलेबस मैंने आपको दिखाया कि हमारा कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है. ओके. चलो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दी rich controls. What is the rich controls? Let's see. Wait. Rich controls. Okay. अभी हमने कंप्लीट किया था लिस्ट, LIST लिस्ट कंट्रोल्स वी हैव कंप्लीटेड. इन दी लिस्ट कंट्रोल्स हम लोगों ने
चेक बॉक्स लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन हमने कंप्लीट किया लिस्ट कंट्रोल्स में। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल्स जो है दैट इज रिच कंट्रोल्स। ओके, एस व्हाट इज रिच कंट्रोल्स? द ASP.NET प्रोवाइड्स लार्ज सेट ऑफ कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स मतलब क्या? जो टूल्स बॉक्स में टूल्स अवेलेबल है, कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स आर यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेजेस। These controls are divided into different categories. Okay, depend upon their functionalities. ये जो सारे कंट्रोल्स है ना टूल बॉक्स में, द कंट्रोल्स आर डिवाइडेड किया हुआ है कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल लिस्ट कंट्रोल्स, तो लिस्ट बॉक्स वगैरह वो सब लिस्ट कंट्रोल्स में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। आपको इसमें तो डायरेक्टली दिखाई देगा सारा, ठीक है। दिस इज टूल बॉक्स, सारे कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल है। तो हमने इसमें से चेक बॉक्स वगैरह जो किया ऑल आर दी लिस्ट कंट्रोल्स है। अभी हम लोग देखेंगे रिच कंट्रोल्स। तो द फॉलोइंग कंट्रोल्स कम्स अंडर द रिच कंट्रोल्स कैटेगरी, ठीक है। फाइल अपलोड कंट्रोल, कैलेंडर कंट्रोल, एड रोटेटर कंट्रोल्स एंड मल्टी व्यू, these four controls are the rich controls. So I will ask in the exam कि फॉलोइंग कंट्रोल में से कौन सा रिच कंट्रोल है, कौन सा रिच कंट्रोल नहीं है। रिच कंट्रोल्स मतलब क्या? एक्स्ट्रा, मतलब न्यू कुछ प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल्स उन्होंने दिया हुआ है इन दी .NET में, उसको हम लोग बोलते हैं रिच कंट्रोल्स। ओके, तो रिच कंट्रोल्स में कौन से कंट्रोल्स हैं? फाइल अपलोड कंट्रोल, कैलेंडर, एड रोटेटर, मल्टी व्यू, जैसे हमने चेक बॉक्स बटन वगैरह किया, लेबल किया, ओके, टेक्स्ट बॉक्स किया, कंट्रोल है सेम वैसे ये ऑल आर दी कंट्रोल्स। फाइल अपलोड कंट्रोल्स, calendar controls, add rotator controls and multi-view controls. We will learn all these controls step by step with the example. Okay, ये सारे controls हम लोग step by step करेंगे. Okay, the first today we will going to learn the calendar control. First rich box control हम लोग देखेंगे, calendar control. Okay, what is control? Control is used to design the web page. Okay, and where the control will find? Control will find in the toolbox. कहाँ पे मिलेगा हमको ये सारे controls? Toolbox. I will ask this type of question in the Viva. ठीक है, वाइवा में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी। ओके, द कैलेंडर कंट्रोल इज फंक्शनली रिच वेब कंट्रोल व्हिच प्रोवाइड द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज। व्हाट द कैलेंडर कंट्रोल विल बी डू? डिस्प्लेइंग द 1 month at a time, selecting a day, week or a month, selecting range of days, moving from 1 month to another month, controlling the display of the days programmatically. Okay, how to create calendar controls? So this is a basic syntax. Okay, if you are doing the कैलेंडर कंट्रोल यूजिंग दी सोर्स कोड, तो आपको ये लिखना है। अगर डायरेक्टली डिजाइन टूल बॉक्स से करोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ASP कैलेंडर ID इक्वल्स टू कैलेंडर रन एट सर्वर एंड क्लोज करो कैलेंडर। ओके, okay, so these are the properties of calendar controls. Okay, these are the properties. First of all, we are taking the calendar control. Okay, we will take the one web form. Yes, recorded lectures देखते हो कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ मैम, देखते हैं मैम। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया, ओनली 1-2 स्टूडेंट्स ने देखा है, मतलब ऐसे ही दिखाई दे रहा है शो वीडियोस में। ये जो है आपको आगे भी want to go industry in this area .NET में अगर आप लोग जाओगे तो ये आपको बहुत यूजफुल है। ये सारी चीजें बेसिक्स है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो यू कैन डू एक्स्ट्रा जो भी है एडवांस जो है वो यू कैन डू योरसेल्फ। अगर बेसिक पता है तो, अगर बेसिक की कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंट्रोल्स पता नहीं है, यूज पता नहीं है, तो आप एडवांस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अ बेस फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बेस है आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टीज देख लेते तब तक, चलो। the caption property, okay, the caption property means we can set the captions, okay, मतलब heading, one type of heading we can see हम लोग set कर सकते कैलेंडर के लिए। caption align gets or set the alignment of the caption, cell padding, okay, space between number, जो कैलेंडर्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे उसके बीच में स्पेस कितना रखता है between the data and cell border, ठीक है। then gets or set the space between the cell spacing, then day header style, get the style properties for section that display the day of the week, okay, day name format, get or set the format of days of week, day style, all are the properties है। select the web application, right click करो,
Wait a bit. I have opened before the 15 minutes, तो भी हैंग हो रहा है. लेक्चर से 15 मिनट्स पहले ही मैंने उसको स्टार्ट करके रखा था. ओके, चलो ऐड न्यू आइटम. Yes, if you have a system ना, you can do simultaneously. ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप देखकर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे simultaneously मेरे साथ सिस्टम में कर सकते हो. ठीक है, मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप लैपटॉप वगैरह कुछ है तो यू कैन डू. आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या सिलेक्ट करना है, क्या करना है. ओके, यस. हाँ, टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे थे we will discuss in the next lecture. ठीक है, आज प्रैक्टिकल में उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. टुमारो we will discuss that questions, answers. MCQ questions आ रहे थे सबको आंसर? yes or no? कि डिफिकल्ट था? मैम इजी था. इजी था ना? हाँ, तो जैसे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ना वही कंसेप्ट रिलेटेड वैसे आई विल रोज पढ़ लोगे तो नहीं इतना टफ जाएगा. वेब फॉर्म कैलेंडर कंट्रोल. ठीक है, तो कैलेंडर कैलेंडर एग्जाम्पल. ठीक है, फॉर एवरी कंट्रोल आई एम टेकिंग न्यू वेब फॉर्म. ओके, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, but application is same. Okay, I am doing every programs in the same application, web application 3. I am just taking the new web form. ठीक है, मैं only new web form ले रही हूँ, बाकी application तो same ही है. Under the web application 3 I am taking all the controls. Okay, sorry, web forms, not the controls. I am taking all the web forms under the one application, web application 3. तो आपको ऐसे ही करना है. You have to create one application and in that application you have to make the different web pages. तो आपको प्रोजेक्ट में भी आपको ऐसे ही करना है. If you are doing your project in ASP.NET तो आपको ऐसे ही करना होगा. एक एप्लीकेशन बनाओगे, उसमें you will make the different web forms pages according to your requirements. ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल्स वगैरह है तो you will make the folder like this and admin folder में then admin side pages जो होगा वो रखोगे. यूजर मॉड्यूल है तो यूजर्स का फोल्डर बनाकर यूजर रिलेटेड जो भी आप उसमें पेजेस बना दो उसमें पुट करोगे. हाउ टू क्रिएट फोल्डर, यू नो, राइट क्लिक करके एडमिन आइटम में जाकर फोल्डर. ओके, ठीक है, चलो नाउ आई एम टेकिंग द कैलेंडर कंट्रोल्स. ओके, कैलेंडर कंट्रोल, रीच कंट्रोल्स हम लोग पढ़ रहे हैं. उसमें से रीच कंट्रोल्स में से फर्स्ट रीच कंट्रोल है कैलेंडर. ओके, हाउ टू टेक, डबल क्लिक करो और ड्रैग एंड ड्रॉप करो. अदरवाइज इफ यू वांट टू डू फ्रॉम द सोर्स कंट्रोल, सॉरी सोर्स कोड, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सोर्स कोड में जाके यू कैन also create the source calendar. Okay, ओके, ASP ऑटोमेटिकली आ गया. अगर आप यहाँ पे भी लिखते हैं ASP ये वाला कोडिंग तो भी कैलेंडर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. ओके, नो इश्यू. नाउ सी द प्रॉपर्टीज. दिस इज कैलेंडर. द कैलेंडर इज यूजफुल टू एट द टाइम ऑफ, अब जब यूजर को बोलोगे ना सिलेक्ट योर डेट, ओके, या तो एंटर योर डेट, तो एट दैट टाइम यू कैन पुट द कैलेंडर. ओके, आप कैलेंडर पुट कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर, चलो बाद में करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है. ठीक है, ओके, the properties, the first property is caption property. Okay, first property is the caption property. You can hide this जो boxes है ना, ऐसे auto hide करके option है यहाँ पे, तो ऐसे करोगे तो automatically hide हो जाएगा. उस पर क्लिक करोगे तो वो शो हो जाएगा. ओके, ऑटो हाइड करना है इसको. ओके, यस, कैप्शन प्रॉपर्टी. ओके, ऑल एट द कैलेंडर प्रॉपर्टी. कैलेंडर जो है हम लोग मोस्टली कोडिंग तो ठीक है, बट डिजाइन इससे प्रॉपर्टी से ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू वांट टू सेट एनी कैप्शन, ओके, हम लोग कैप्शन अगर यहाँ पे रखे तो क्या कैप्शन सेट करना है? वेब प्रोग्रामिंग. चलो हम लोग दे देते हैं वेब प्रोग्रामिंग कैप्शन. ठीक है, हम सेट द कैप्शन प्रॉपर्टी.
वेब प्रोग्रामिंग। ओके, कैप्शन सेट हो जाएगा। ओके सी आ गया यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग कैप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी हमने सेट किया वो यहाँ पे हो रहा है। देन सेल्फ स्पेडिंग सेल्फ स्पेसिंग है। ओके, एवरी टाइम यू हैव टू सिलेक्ट द कैलेंडर कंट्रोल। ओके, देन क्या था प्रॉपर्टी, सेल्फ पेडिंग सेल्फ स्पेसिंग। ठीक है, जिसके लिए आपको कोड करते थे HTML में, वो रेडीमेड आपके लिए आपके पास अवेलेबल है। एंड राइट 5 देखो। ओके, नाउ यहाँ पे सेल्फ स्पेसिंग 0 है इफ यू वांट टू चेंज। ठीक है, तो कंटेंट सेल के बीच में, ओके, एंड बॉर्डर कंटेंट एंड कंटेंट के बीच में जो है वो चेंज हो जाएगा, सेल्फ स्पेडिंग एंड सेल्फ स्पेसिंग। कैप्शन अलाइनमेंट वो कैसे सेट करना है, अलाइनमेंट वो है। ठीक है, देन डे हेडर स्टाइल, get the style property for the section that display the day of the week. Okay, this is important property. ये जो मेन प्रॉपर्टी वो मैं आपको पूछूंगी एमसीक्यू में। क्या है डे हेडर प्रॉपर्टी? व्हाट इज द यूज ऑफ डे हेडर प्रॉपर्टी? Gets the style properties for the section that display the day of the week, that display the day of the week. Day header style. Okay, day header style. Select day header style. Okay, day header style. ओके, तो डे हेडर स्टाइल जो है वो सपोज बैक कलर अभी सी अभी पूरा वो है। ठीक है, कलरिंग नहीं है। डे हेडर स्टाइल। ओके, उसका अगर बैक कलर हम लोग चेंज कर देते हैं ब्लू। ओके, डे हेडर जो हेडिंग जो है डे हेडर, ठीक है, उसका कलर हमने ब्लू का। हेडिंग ओनली डे हेडर में क्या हमने चेंज किया, हेडिंग। तो जो मंडे ट्यूसडे वगैरह है दैट इज चेंजिंग। ओके, हेडिंग। ओके, इसका बैक कलर हमने सेट किया। इफ यू वांट टू सेट बॉर्डर कलर, अगर बॉर्डर कलर सेट करोगे तो बॉर्डर कलर इसका बॉर्डर जो पिंक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, इसको हम लोग रन करेंगे, देन यू विल क्लियरली सी आप। ठीक है, रन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी बॉर्डर स्टाइल आई एम सेटिंग डे हेडर। ठीक है, डे हेडर, डे हेडर। नाउ सी बॉर्डर किया ना अभी आप, यू कैन सी। ठीक है, हमने उसका बॉर्डर सॉलिड किया है, उसका कलर हमने दिया था बॉर्डर कलर, तो वो चेंज हो रहा है। ओके, देन डे हेडर, विच प्रॉपर्टी आई एम सेटिंग डे हेडर। ठीक है, बाकी फॉन्ट फॉर कलर हाइट वगैरह जाने दो। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डे हेडर स्टाइल? डे हेडर स्टाइल, ओके, डे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑल आर द डेज। If you want to change that days, so you can set use the day header style property. Which property? Day header style property. Okay, now what is the next property? Day format name property. Day day name format property. Get or set format of days of the week. ये तो हेडिंग हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसको चेंज करना है तो यू हैव टू सेट दिस प्रॉपर्टी। इफ यू हैव टू सेट द डेज ऑफ द वीक आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं डे नेम फॉर्मेट प्रॉपर्टी से। डे नेम फॉर्मेट प्रॉपर्टी अगेन सिलेक्ट करो, डे नेम फॉर्मेट प्रॉपर्टी। डे नेम सिलेक्टेड, डे एक मिनट, डे स्टाइल है, वी हैव द डे स्टाइल प्रॉपर्टी, डे नेम फॉर्मेट प्रॉपर्टी। वेट, डे स्टाइल, डे बेटा वेट day name format. Okay, day name format property. So day name format property have these options. Which option? Short, first letter, first two letter, shortest. Okay, तो अभी short दिखाई दे रहा है, first letters तो देखो MTV Monday Tuesday Wednesday. Okay, day name format. How to
हाउ यू वांट टू डिस्प्ले दी डेज। ओके, तो फर्स्ट लेटर लिखा तो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट टू लेटर्स तो मंडे ट्यूसडे मतलब टू लेटर्स आ रहा है, MOTUUS। ओके, क्लियर? क्या चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है, डे नेम फॉर्मेट में विच ऑप्शंस कम्स। ओके, हम इसमें से कोई भी हमको सेट करना है, शॉर्टेस्ट। ओके, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट में वो लोग यही ले रहे। ओके, अगेन हम लोग फुल देख करके देखते हैं, डे नेम फॉर्मेट। ओके, फुल देखते हैं, तो फुल आया देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो यू कैन फॉर्मेट द कैलेंडर लाइक दिस। ओके, आप ऐसे कैलेंडर को फॉर्मेट कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज। सिलेबस में आपको प्रॉपर्टीज है, तो आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा डे नेम फॉर्मेट जो है वो फुल है, तो उसको शॉर्ट में हम लोग कर देते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो विच प्रॉपर्टी वे हैव सीन नाउ, अभी तक हमने कौन सा प्रॉपर्टी देखा, कैप्शन प्रॉपर्टी देखा। ओके, सेल्स कैप्शन अलाइन कुछ नहीं, उसको मिडल में फ्रंट कैसे लाना है, राइट लेफ्ट वो जस्टिफाई करेगा। सेल्फ स्पेडिंग, सेल्फ स्पेसिंग, डे हेडर स्टाइल। ओके, डे हेडर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो क्या है, हेडर है, डेज हेडर है, डेज है ना वो, तो उसको कैसे बैक कलर फॉर कलर करना है वो यू कैन सेट यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। डे नेम फॉर्मेट। ओके, डे नेम फॉर्मेट से क्या हुआ, आपको जो डे है मंडे ट्यूसडे वो फुल डिस्प्ले करवाना है, शॉर्ट में करवाना है, फर्स्ट लेटर करवाना है, फर्स्ट टू लेटर करवाना है, वो सेट होगा यूजिंग दी डे हेडर स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई विल आस्क दिस क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस होगा। Clear? The next property is day style property. Which property? Day style. Get this style property for the days in the display month. Now see day style. Okay, day style property. Which property? Day style property. Okay, see day style back color yellow. Okay, day style. Now this is for day. ये जो days है ना month के, अब yellow color हो गया। See, अगर मैं इसको change करूँ day style properties में, बैक कलर मैंने येलो किया था, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन करी, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यू कैन सेट दी डे स्टाइल प्रॉपर्टी। कौन से प्रॉपर्टी से क्या सिलेक्ट हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, डे स्टाइल प्रॉपर्टी, और ये सारी चीजें व्हेन यू विल डू योरसेल्फ, तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया एंड आपको ऑलवेज याद रहेगा। सी मैंने बॉर्डर भी सेट कर दिया उसको। ओके, कैलेंडर थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें इज वेरी यूजफुल है जब आप अगर कोई एप्लीकेशंस वेबसाइट जो आपका वेबसाइट शॉपिंग्स वगैरह है, या तो यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए जहाँ पे डिजाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, यूजर इंटरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, एट दैट टाइम यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कौन से कंट्रोल्स के लिए विच प्रॉपर्टीज आर देयर। ओके, नाउ फर्स्ट डे ऑफ वीक, गेट और सेट द डे ऑफ वीक टू डिस्प्ले इन द फर्स्ट कॉलम। आपको फर्स्ट डे कौन सा सेट करना है। ओके, दैट आल्सो यू कैन चेंज फर्स्ट डे ऑफ वीक। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट डे क्या है ऑफ वीक, मंडे दिखा रहा है। ओके, तो इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू चेंज, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, अभी भी डिफॉल्ट है। ओके, डिफॉल्ट है। अगर आपको अभी क्या दिखा रहा है ना, मंडे दिखा, अगर आपको संडे करना है, सी संडे आ गया फर्स्ट। ओके, इफ यू वांट टू चेंज फर्स्ट डे ऑफ वीक, अगर आपको यूजर को ट्यूसडे से थर्सडे से स्टार्ट करना है, तो आ गया थर्सडे फर्स्ट। ओके, तो यू कैन चेंज ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट। ओके, फर्स्ट डे ऑफ वीक कोई भी आपको जो भी सेट करना है, डिफॉल्ट करोगे तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। तो दिस इज अ दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट डे ऑफ वीक। देन नेक्स्ट मंथ टेक्स्ट। ओके, गेट और सेट द टेक्स्ट फॉर नेक्स्ट मंथ नेविगेशन कंट्रोल। द डिफॉल्ट वैल्यू इज ये वाला वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मंथ टेक्स्ट। अभी ये जुलाई है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना नेक्स्ट मंथ के लिए, ये एरो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको वहां पे कुछ सेट करना है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ओके, ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है। अगर यहाँ पे आप कुछ और टाइप करोगे तो अभी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है ना, सी यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है।
ओके, इफ यू वांट टू चेंज, आप उसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक लिख सकते हो, जो भी आपको करना है। आ गया क्लिक, या तो नेक्स्ट यू कैन टाइप, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो यू कैन मॉडिफाई द कैलेंडर। ओके, जैसे आपको कैलेंडर को न्यू लुक देना है, यू कैन लुक। नेक्स्ट करूंगी, सी नेक्स्ट आ रहा है। सेम प्रीवियस मंथ के लिए आपको करना है तो यू कैन नेक्स्ट प्रीवियस मंथ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रीवियस मंथ के लिए लेस देन है यहाँ पे, ठीक है। आपको उसको चेंज करना है तो बिफोर या तो प्रीवियस लिखना है, तो आप जो भी सेट करोगे। प्रीवियस आ गया, तो आप अपने हिसाब से यू कैन फॉर्मेटिंग दी योर कैलेंडर। ओके, जब यूजर को आप रजिस्ट्रेशन पेज पे बोलोगे सिलेक्ट योर डेट, या तो कोई ऑनलाइन एग्जाम के लिए कुछ बना रहा है, या तो जहाँ पे आपको यूजर को बोलना है कि डेट सिलेक्ट करो या तो मंथ सिलेक्ट करो, तो एट दैट टाइम अगर आप कैलेंडर को इतना अच्छे से वहाँ पे रखोगे तो वो अलग ही इंप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग यू नो, फर्स्ट डे ऑफ वीक ये हमने देखा, नेक्स्ट मंथ भी देखा। ओके, नेक्स्ट मंथ टेक्स्ट क्या आना चाहिए वो भी हमने देखा। देन नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट, ओके, नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट, तो get or set the format of the next and previous month navigation control. Okay, then other month day style, other month get and style for the days on the calendar that are not in display in the month. Okay, so other month day style, other month day style property also you can set. तो ये आपको खुद को सब देखना है, ठीक है। अदर मंथ, ओके, इसको पहले हम लोग अच्छा से कर ले, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेट्स कैसे आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अदर मंथ हम लोग कर रहे हैं, अदर मंथ डे स्टाइल जो अभी करंट मंथ में नहीं है, ठीक है, और कोई मंथ में अभी है, उसको हमको चेंज करना है। तो सी, तो ये जुलाई नहीं है, ठीक है, जुलाई वाले जो है ये वही है, जो अदर मंथ्स है वो उनका कलर चेंज होगा, ये प्रीवियस मंथ वाला, ये नेक्स्ट मंथ, मतलब ये अगस्त के डेज है एंड दिस आर दी जून के डेज है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो प्लीज जिसके पास सिस्टम नहीं है वो देखो कौन सा प्रॉपर्टी सेट करने से क्या हो रहा है। सेम प्रीवियस मंथ टेक्स्ट भी आप चेंज, वो हमने किया, ठीक है, प्रीवियस मंथ किया। देन सिलेक्टेड डेट, गेट और सेट द सिलेक्टेड डेट। ओके, सिलेक्टेड डेट्स, सिलेक्टेड डेट्स, इफ यू सिलेक्ट मल्टीपल डेट्स तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैम हाँ बोलो, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो बोलो। मैम ऊपर ही प्रीवियस का था ना मैम, आप स्लाइड पे वापस आइए ना मैम। ये वाला क्या, प्रीवियस वाला? यस मैम। हाँ, तो प्रीवियस के लिए यू हैव टू सेट प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी यू हैव टू सेट, प्रीवियस मंथ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रीवियस मंथ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस की जगह पे आई एम राइटिंग अनदर कोई वर्ड, अगर मैं लिखूँ कौन सा प्रॉपर्टी, प्रीवियस मंथ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बिफोर लिख दूंगी, ठीक है, जो भी आपको टाइप करना है यू कैन टाइप। बिफोर आ गया कि नहीं? ओके, आ गया प्रीवियस मैम। प्रीवियस, ओके, तो ये प्रीवियस। ओके ओके, क्या देख रही थी मैं, विच प्रॉपर्टी आई एम सेटिंग, सिलेक्टेड डेट्स। ओके, ये सिलेक्टेड डेट्स जो है ना वो हम लोग करेंगे कोडिंग थ्रू करेंगे, ठीक है, दैट वी विल डू विद द कोडिंग, कोडिंग थ्रू हम लोग करेंगे। सिलेक्टेड डेट स्टाइल, ओके, सिलेक्टेड डेट स्टाइल, सिलेक्टेड डेट स्टाइल, ठीक है। सिलेक्टेड डेट स्टाइल, अगर कोई यूजर सिलेक्ट कर रहा है तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। कौन सा है, येलो किया। अभी ये आपको कब मिलेगा, जब हम लोग उसको रन करेंगे ना, एट रन टाइम भी यू कैन सिलेक्ट ना, अभी तो उसको हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर डेटा भी हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं नो,